What's up, y'all? My name is Ray. If you're here for the first time, welcome. And to my returning viewers, I am humbled to welcome you back for another video. Today, my friends, we're watching Panchayat, Season 1, Episode 4, titled Hamara Neta Kesa Ho, and I am really excited. Before we begin, we'll take a couple minutes and review Episode 3 and talk about some of my thoughts as we head into this next installment. And guys, if you enjoy hanging out today, please leave a like on this video and drop a comment below. It really makes my day. And subscribe to the channel if you're not already. We're going for 15K. Also, I have a Patreon and YouTube memberships if you want to go above and beyond to support the channel and get access to full-length reactions and have your name in my videos, that kind of thing. And with all that said, let's talk Episode 3. Episode 3 was lovely and charming and funny and all those things that we're coming to expect from Panchayat on a episode basis. It was just a delight, as have been the first couple of episodes as well. And this was another one that took place with an enclosed storyline. This time it was one of the people from the village, Parmeshvar, his daughter's getting married. And so it's the lead up and preparations for the wedding, along with the wedding itself, and Abhishek's role in it versus the role of all the village members. We get to see that Abhishek is still clashing culturally with some of the traditions of the village, but is definitely more ingrained into the village than he was before. We can assume it's been maybe a month or two, and yeah, so at the end of the day, he's still cranky, he's still a grump, he still doesn't want to participate. But I will say, I did read some comments, and you're right, reflecting on it, I might be too hard on Abhishek because he is dedicated to taking that CAT exam, which is so difficult. It's almost like having another job, needing to study for that is almost like having two jobs now. So, whereas I might criticize him for not being more involved in the preparations for the wedding and not being more open to lending his space out. There is that consideration as well, that he is immensely busy, and is trying to crack one of the hardest exams in the world. So, which makes it a great show when there's that kind of middle ground where you're like, yeah, but he should be nicer. And it's like, yeah, but can he be? And still, is he going to pass the exam if he, doesn't take a hard line about his study time and stuff like that? So I don't know. I really enjoyed it. It was great to see a couple of our friends from Mirzapur. Parmeshvar was played by Uncle Tyagi from Mirzapur, and the groom was played by Babar from Mirzapur, and I didn't catch his name, actually, the groom. But it was so funny to see him. It was hard for me to recognize him as Babar because he looked so young and frail, and he just played the role of this like overwhelmed young groom, with like an attitude. It was funny seeing him in that role. I really enjoyed the episode. I loved the entire plot line with the chair and needing the chair to go, and then the groom ends up taking the chair. The whole thing is just hilarious. And by the end, Abhishek loses his chair, and Pradhan says he's going to get a new one. So I'm wondering if we'll actually see that in this episode, or if that was just like an episodic event. But I'm expecting to see Pradhan in like that nice cushioned wheelchair or wheeled chair, and Abhishek in the slightly less comfortable former chair of Pradhan. Gosh, you know what? I loved the characters. I loved the storyline. I'm ready to get into episode 4, guys. So without any further delay, let's watch Panchayat, season 1, episode 4, Hamara Neta Kesa Ho. Oh, we haven't met Mom. हेलो हाँ मी हाँ नाश्ता कर लिया 11 बज रहे हैं 11 बजे तक थोड़ी भूखा रहूँगा अरे वही ब्रेड जैम केला हाँ दूध भी पी लिया There's the chair. सच में लगवा रखा है झूठ क्यों बोलूँगा आपसे अरे मम्मी आपको वहाँ बैठे बैठे कैसे पता चल रहा है दूध नहीं लगवाया लगवा रखा है अरे मम्मी अभी दूध पा लिया कहाँ से भेजूं फोटो आपको Jesus. कल भेजता हूँ फोटो ठीक है गजब धड़ल्ले से झूठ बोल लेते हैं सर आप तू घर से दूर रहेगा तू भी बोलना सीख जाएगा चल काहे बद्दुआ दे रहे हैं सर नया नया शादी हुआ है अभी
चाबी आपका? हाँ जी सर। अरे क्या जी सर। अभिषेक जी ये बताइए काम कंप्लीट होगा कि नहीं स्लोगन वाला? नहीं सर, आज हो जाएगा पक्के से। हर दिन डीएम साहिबा का फोन आ जाता है, अपडेट बताइए, क्या बताएं हमको? आज अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा, ये जान लीजिए। अरे नहीं सर, आज हो जाएगा, पेंटर आ गया। इनफैक्ट मैं भी साइट पे ही जा रहा था सर। Interesting. Okay, what have we been putting off for a week that requires a painter? तो है, चल। Oh, now he's a walker. सचिव जी, ये सब लिखवाने से कोई फायदा होता है क्या? Is this school? इसको जितना बच्चा पैदा करना करता ही है ना? आप बताइए। देखते हैं, लिखवा दिया है। अब ऐसा है प्रहलाद जी, सरकारी ऑर्डर है। ये सब पढ़ के लोगों में थोड़ा बहुत जागरूकता तो आता ही है। ये सब तुम जैसे नवविवाहित लोगों के लिए है, समझे? हम तो पहले ही नींद से जागरूक हैं। चलें, ये तो सही लग रहा है। चलना ही पड़ेगा। I wonder what it says. हम तुम्हारे जागरूक में आग लगाते हैं। यहाँ देखो। I don't want to guess. I'll be so wrong. अच्छा प्रधान जी, मैं दूध लगवाने का सोच रहा था गांव में, किसके यहाँ से लगवा लूँ? प्रधान जी से लगवा लीजिए ना, इनके यहाँ कितना गाय भैंस है। ठीक है, तो गाय का चाहिए कि भैंस का? भैंस का दूध थोड़ा गाढ़ा होता है। अरे शहर के आदमी हैं, गाढ़ा दूध कहीं पचने में दिक्कत ना हो जाए। Right? पानी मिला लेंगे और क्या, सब हो जाएगा। ठीक है, भैंस का ही कर लेते हैं प्रधान जी। भैंस का तो हमारे यहाँ तो 3 तरह का भैंस है, मुर्रा, सुरती और जफराबादी। आपसे लेते थे ना उस सुरती, तो उसका दूध ठीक था। अरे जफराबादी बेहतरीन सचिव जी। अरे चुप करो, दूध तुमको पीना है कि उनको पीना है? आप मुर्रा कर लीजिए, मुर्रा। ठीक है, मुर्रा ही कर लेते हैं। ठीक है। आधा लीटर बहुत रहेगा। दूध तेरे की, आधा लीटर कोई दूध होता है? हाँ, थोड़ा खाड़ा जाइए, दंड बैठक लगाइए, नहीं ऐसे ही मरगिल्ले बने घूमते रहेंगे। नहीं, आधा लीटर बहुत रहेगा। कितना पड़ जाएगा महीने में? हम आधा लीटर दूध का कहाँ पैसा लेंगे तुमसे भाई? अरे नहीं, ऐसे थोड़ी चलेगा प्रधान जी, रोज। नहीं, हम कह दिए तो कह दिए, हम नहीं लेंगे। अरे प्रधान जी, प्रधान जी के पास बहुत पैसा है सचिव जी। अरे हैं आप। यही पेंट है। और ये क्या लिखा हुआ है? पेट्रोल कहाँ पे? आ गए सर। ये क्या लिखे बे? 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा बाबा सिर। वीडियो ऑफिस से यही लिखवाने का ऑर्डर है। Wow. ये जागरूकता के नाम पे कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? Yeah. थोड़ा ज्यादा है पर चलता है प्रधान जी। अरे हाँ, पहला चलता है। यहाँ पढ़ता कौन है गाँव में? ठीक है, अब आप लोग को सही लग रहा है तो ठीक है। Hmm. वो बनवारी को भेज दें, रोज सवेरे 7 बजे आधा लीटर दूध दे जाएगा। हाँ ठीक है, आप लोग निकलिए, मैं ये काम करवा के आता तो मुर्रा का भेजे ना? हूँ। हाँ, वो हिसाब किताब का भी बता दीजिए महीने का आप। हमने वादा कर लिया है ना, काहे का हिसाब छोड़िए। आओ। अच्छा हम ऑफिस में रहते हैं। तुम तो बोल रहे थे 1 घंटा लगेगा। बस भैया जाए। Okay, so it's about having too many children. There's an order from the government to write a sign that encourages people to have no more than 2 children. But a little overboard on the wording there. A little bit disrespectful, perhaps. Yeah. Best part of my day when I watch on the days I record. This is my favorite part every time, man. You know, somebody in the comments said this is their ringtone, and that stuck with me. I think I'm gonna make this my ringtone, or maybe my alarm in the morning. Man, such a pleasant way to wake up. All right, let's do it. Manju Devi. Uh-oh. आधा लीटर दूध का पैसा मांगते हो, अच्छा थोड़ी लगता है? हाँ हाँ, अब तो इतना धनवान हो गए हैं कि 750 रुपया महीना से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कहीं 1 करोड़ 2 करोड़ छुपा के रखे हैं तो हमको भी बता दीजिए ना। बेटी का शादी सर पे आ गया है, वो पकड़ाई। हाँ, आधा लीटर दूध महीना भर मुफ्त में देने से जैसे बेटी का शादी रुक जाएगा। बात यह है कि आपका आदत ही बिगड़ा हुआ है। किसी को लौकी दे आते हैं, किसी को दूध दे आते हैं। अरे जाके पूरा का पूरा भैंस ही दे आइए ना। काहे चिल्ला रहे भाई? मांग लेंगे सचिव जी से पैसा। अब तो खुश?
क्या खुश? मांग कर हम पर कोई उपकार नहीं कीजिएगा। ठीक है तो नहीं मांगेंगे। मांग लेंगे। अभी कभी थोड़ी मांग सकते हैं। मांगने के लिए थोड़ी सोचना पड़ता है कि कब मांगे, कैसे मांगे, कहाँ मांगे। ये नहीं कि बस मुंह उठाए चल दिए और जहाँ सचिव जी दिखे तो कहे सचिव जी पैसा निकालिए। अरे मुझसे वादा किए हैं, ऐसे थोड़ी है। तो कह दीजिए नेता है, झूठ मूठ का वादा करते हैं, कह दीजिए। ऐसे वैसे नेता नहीं है, किस तरह के नेता हैं? ऐसे हैं। Yeah, you tell her. 2-4 दिन में ऑफिस आके अपना पैसा ले लेना भाई। Well, 3 kids. Way to go. क्या लिखवा है सचिव जी? Look what you've done. He has 3 beautiful kids who make him happy. ये तो बता ऐसे ही सरकारी काम। 2 से ज्यादा बच्चा बवासीर होता है। हमारा पिंटू बवासीर है। पिंटू तो बाबा सिर है, पिंटू तो बाबा सिर है। सचिव जी ये नारा वारा हटवाइए। Mm. हटवाइए। नहीं देखिए हटवा तो नहीं सकते, ऊपर से ऑर्डर है। विनोद जी, भाई लोग देखिए प्रधान जी के राज में क्या हो रहा है। क्या हुआ भूषण जी? आपको 4 गो बच्चा है ना? हाँ तो इन लोग के मुताबिक आपका तीसरा बच्चा और चौथा बच्चा बवासीर है। क्या? हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे भूषण जी हैं। क्यों छोटी सी बात का आप बतंगड़ बना रहे हो? अभी तो आप देखते जाइए। अब प्रधान जी को जाके बोल दीजिएगा कि हमारे खानदान से अगले पंचायत इलेक्शन में उनको 1 को वोट नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा खानदान है हमारा और सबको 3-3 को 4-4 को बच्चा भी है। तो हम भी वोट नहीं देंगे इनको। पापा Oh, पापा फिर Jesus. हम भी इनको वोट नहीं देंगे। बस 18 साल हो जाए तेरा। Oh, way to go, dude. Poor guy. Now you're stuck. I mean, what position can you be in? Interesting. Interesting. Gonna have to put his foot down with the government orders. I didn't catch the name of the guy who was issuing the orders, but विकास, हाँ? जाके पुतवा और सब हटवा दो वहाँ से। अरे प्रधान जी स्लोगन लिखवाने का ऊपर से प्रेशर है। अरे प्रेशर तो हमारे ऊपर भी है भाई। सचिव जी, गांव में बहुत से लोगों के पास ना 2 से ज्यादा बच्चे हैं। वो सब अगर प्रधान जी के खिलाफ हो गए तो मैं क्या करूं प्रहलाद जी? मेरी नौकरी जा सकती है प्रधान जी। आपकी तो सिर्फ नौकरी जाएगी, हमारे हाथ से तो प्रधानी चली जाएगी। बताइए कौन सा ज़्यादा जरूरी है? इनके लिए तो इनका नौकरी ही ज़्यादा ज़रूरी होगा ना। हेलो, हाँ गजिंदर बोलो, क्या कह रहे हो? अरे आपके बच्चे को बवासीर की बात नहीं है भाई, ये दूसरा बवासीर है। अरे सब समझते कहाँ नहीं है? नहीं नहीं वो सब नहीं है, नहीं नहीं। हाँ गजेंद्र लोग 4 भाई, मतलब 4 वोट, चारों की पत्नियां 4 + 4 8 वोट, और गजेंद्र के बाप इलेक्शन तक जिंदा रह गए तो एक और 9 गए 9 वोट। सचिव जी, आप वीडियो साहब को समझाइए बुझाइए ना, देखिए थोड़ा। yeah. It's the only way you can do this. अरे यार, पहला जाके वो सब दीवार पुतवाओ यार, ये नहीं तो दिन भर फोन आता रहेगा। प्रधान जी अभी के लिए तो रहने देते हैं ना। अरे अब टेंशन काहे लेते हैं, वीडियो साहब मान जाएंगे ना। I don't know. आपको क्या लगता है, नहीं मानेंगे वीडियो साहब? Gonna bribe him a little bit, maybe? Go talk to him yourself, Pradhan? हाँ। अब ये किसको मुफ्त में देने जा रहे हैं? अरे हद प्राणी हो भाई, हटो। सचिव जी से दूध का पैसा के बारे में बात किया? अरे मांग लेंगे, 750 रुपये के लिए तुम तो हमारे कपार पे चढ़ के बैठी हो। चलो हटो तो। नहीं नहीं, सारा घर लुटा दीजिए ना, ले आइए सब कुछ। Are we going to see the BDO? अभिषेक सर, ये आप ही दे दीजिएगा वीडियो से, हमको थोड़ा सा दुख। एक तो यार प्रधान जी से कोई बात करने जाओ तो बात बात पे लॉक ही पकड़ा देते हैं। ये क्या है?
It's a gift. सर अब प्रधान जी लिखवाने नहीं दे रहे तो बताइए मैं क्या करूं? डीएम मैडम पूछेंगे, हम बोल देंगे फुलेरा ग्राम पंचायत के सचिव काम करने में सक्षम नहीं। Oh, come on. आप जाके समझा दीजिए प्रधान जी को। अरे हम क्या समझाएं भाई, आपके प्रधान जी हैं, आप समझाइए। सर गांव वालों को ना बवासीर शब्द से थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसके जगह कोई दूसरा बीमारी गजब पति आते हैं भैया। अरे बदल कैसे दें, जानबूझ के डाला है वो वर्ड ताकि लोगों को बुरा लगे। बुझाता ही नहीं आप लोगों को। हमारी डीएम मैडम को देश की बढ़ती आबादी की बहुत चिंता है। देखिएगा ये स्लोगन लोगों को अंदर तक हिट करेगा, इसलिए जाइए प्रधान जी को समझाइए, नहीं तो डीएम मैडम हमारा गांठ तो फड़वे करेंगे, आप लोगों का भी गांठ फड़ेंगे। I don't like it. I don't like it. जाइए। I don't feel like you deserve that gourd. That was not very understanding at all. I mean, it makes sense. I mean, Jesus Christ, you couldn't rewrite it to have a similar effect without being so offensive. प्रधान जी वो स्लोगन वापस लिखवा देते हैं, वरना डीएम मैडम हम दोनों का। Put your foot down, Pradhan. प्रधान जी कुछ तो बोलिए। अब जाइए पढ़ाई लिखाई करिए अपना। He's got a nice watch. I like that watch. Abhishek's got a little style, man. It's simple, but I like it. क्या हो जाएगा? अगला इलेक्शन हार जाओगी। हार गए तो हार गए, लेकिन ये लोग जो एक छोटा सा नारा को लेके इतना बड़ा तूफान खड़ा किए हैं ना, उनको कहिए कि जाकर अपने घर में अपनी औरतों से पूछें कि 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने और उनके पालने में उनकी क्या हालत हो जाती। ठीक है, बवासीर अच्छा शब्द नहीं है, पर बात तो सही है ना। ज्यादा ज्ञान मत दो, हमको सब पता है। अरे खाली सही काम करने से आदमी इलेक्शन नहीं जीत जाता। पॉलिटिक्स का कुछ आता पता नहीं है तुमको। ये क्यों नहीं कहते कि कठिन काम करने का आप में हिम्मत ही नहीं है? आइए, पसर जाइए। कुछ भी बोले चली जा रहे, ज्यादा पता है नहीं, बस बोले चली जाएंगे। सचिव जी से अपना ही दूध का पैसा नहीं मांगेगी कि उनको बुरा ना लग जाए। और नारा सही है, लेकिन लिखवाएंगे नहीं कि गांव के लोगों को बुरा ना लग जाए। देखिए हमारी तरफ देखिए, नारा के नीचे हमारा नाम लिखवा दीजिए कि हम बोले हैं, और सचिव जी से दूध का पैसा की बात भी हम ही कर लेंगे। सही बात के लिए आवाज तो निकलता नहीं है, बड़े आए हैं नेता बनने। Damn. That was pretty rough, Manju Devi. Damn. What are you going to do, man? I don't like the word piles there. I want him to put his foot down. I want him to stick to it. I don't like the word piles there. I don't. डिसिप्लिनरी एक्शन में सस्पेंशन वगैरह कुछ होता होगा। अबे तो पंचायत की एचआर पॉलिसी चेक करना, उसमें एक लिखा हो। मिनट। हेलो अभिषेक, हेलो जी प्रधान जी। सचिव जी एक काम करिए, कल सुबह सारे वार्ड मेंबर का एक मीटिंग बुलवाइए। There you go. Yeah, make everyone sit with the decision. I like that. देखिए आप सब लोग जाइए और अपने अपने वार्ड के लोगों को ये बताइए कि हम 2 बच्चे हैं मीठी खीर और उससे ज्यादा बवासीर, ये वाले नारे के साथ खड़े हैं। प्रधान जी फैसला डीएम मैडम के प्रेशर में तो नहीं ले रहे हैं ना? अरे नहीं भाई, ये फैसला हम खुद ही लिए हैं। प्रधान जी आगे इलेक्शन में दिक्कत हो सकता है। अरे खाली आपको नहीं, हम लोगों को भी दिक्कत हो जाएगी ना। देखिए अगर कोई पूछे तो कह दीजिए ये हमारा जिम्मेदारी है, आप लोगों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। फिर ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है। बोलना कि ये फैसला हम दोनों का है, प्रधान उप प्रधान दोनों का। तुम काहे बीच में घुस रहे? अरे नहीं प्रधान जी, आप कुछ अच्छा में राजनीति की है, आप हार गए हम जीत गए तो मजा नहीं आएगा। बहुत हरामी है तुम, कसम से। प्रधान जी हम भी आपके साथ हैं। देखिए मैं तो इलेक्शन से नहीं हूँ,
पर मैं भी प्रधान जी के साथ ही हूँ। ठीक है, देखिए आप लोगों पे जिम्मेदारी का कोई दबाव नहीं है, समझे? ठीक है प्रधान जी, जैसा आप बोले। ठीक है, चलिए फिर। अरे रुक, एक मिनट, बैठ। सचिव जी, वो जो कल आपने हमको बात बताया था ना सिगरेट के डिब्बे वाली, वो इनको समझाइए ना। अरे बैठे समझा दो भाई, खड़े हो गए। We can hear you just as well. सुनिए, लोगों को ये बात समझाते हो तो अगर कोई आनाकानी करे, किसी को बात नहीं समझ में आ रही हो, तो ये एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा कि जिस तरह से सिगरेट की डिबिया पे वो वार्निंग फोटो छपी होती है, हमारा नारा भी उसी तरह से जानबूझकर बुरा बनाया गया है ताकि लोगों तक सही संदेश पहुंचे। अच्छे से समझ में आया ना? बिल्कुल जैसे सचिव जी ने समझा, बिल्कुल वैसे ही जाके समझाना। ठीक है? हाँ जी, शब्द बाय शब्द एकदम वैसा ही जैसे बताए हैं। ठीक है? ठीक है, जाओ। एकदम। और विकास, तुम जाके वो नारा दोबारा लिखवा। पूरा ठीक से ना। चलिए भाई, चलते हैं। All right. Good decision. Good decision. I don't like the word piles though, but I like the decision making. ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रधान जी ने जो डिसीजन लिया है एकदम सही लिया है। अरे छोड़िए, सब क्या फर्क पड़ता है। सही काम करने के चक्कर में नेतागिरी तो हम लोग का दांव पे लग गया ना। वीडियो सर का फोन आ रहा है। हाँ सर, प्रधान जी मान गए। हाँ, बधाई हो। अच्छा अभिषेक जी, वो बवासीर वाला जो स्लोगन था ना, वो मैंडेटरी नहीं है अभी। What? क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ खास। Bunch of people complained. पास के गांव से खबर आई थी कि 6 बच्चों का बाप था, वो स्लोगन पढ़ा, गुस्से में आ गया, पंचायत की ऑफिस जला दी रात में जाके। तो देख लीजिएगा आप लोग जो ठीक लगे, ठीक है? Well, now what the fuck? What are you क्या supposed? करें प्रधान जी, चल के रोके उन्हें? अरे रोके प्रधान जी उनको, और क्या? अरे प्रधान जी यहाँ ऑफिस में आके आग वाग लगाती तो दिक्कत हो जाएगा। अकेला सोता हूँ रात को, दरवाजा बंद कर। आप कुछ फोन करो, विकास को फोन करो। प्रधान जी, अरे अभी तो आप कह रहे थे सही फैसला लिया है। जब सही फैसला लिया है तो डर कह रहे हैं? No, अरे ऑफिस को कोई कुछ नहीं करेगा, जो करेगा अगले इलेक्शन में हमारे साथ करेगा। चलो। अरे लेकिन कुछ नहीं, और वो दूध का महीने का 750 रुपया होगा। हाँ? 750 रुपया, मुर्रा भैंस है, उसको खिलाना पिलाना पड़ता है कि नहीं? आज पता नहीं क्यों हमको अंदर से सरदार पटेल जैसा महसूस हो रहा है। सरदार पटेल को जानते हैं ना? No. भारत के लौह पुरुष कठिन से कठिन फैसला चुटकी बजाते ही ले लिया करते थे। हमको भी एक दिन वैसा ही बनना है। Man, I want some of her food. Hey, he got 2. All right. Oh, don't end. Are you serious? Oh, come on. Oh, what? Oh, why did that feel so short? What was that, like a 20-minute episode? Oh, what a fun episode. So honestly, in the end, I don't love the fact that they went with the slogan, more than 2 can be like piles. I do feel like it's a little disrespectful, although I certainly understand, I think China did the same thing for many years with like a one-child policy. And India, like this directive certainly isn't telling people they can't have more than 2 kids. It's just saying, hey, and I think they could have worded this better, but just, hey, be wary, more than 2 children can be a financial burden, and, only do it if you're really ready, blah, 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 something like that. That's a little bit less insulting. All in all, I think it was a really charming episode. I really enjoyed it. Yeah, it's nice to see Abhishek's integration into the village. He's really becoming more of a staple around the village. I love everything we see between Pradhan and Manju Devi. I love their scenes together. I think she's a great character, even though she was a little rough on him this time and, whatever. But I love their interpersonal, their scenes together. Vikas and Prahlad continue to be just delights. Gosh, I really feel like this was a short episode. Maybe I'm misremembering, or forgetting some things, but it just flew by. I can't wait to get into episode 5. I'm ready to start right away. So again, we'll talk a little bit more about episode 4 before we get into the next one. So come back and join me for that.
Thank you to everybody for watching this with me. It really means a lot. Thank you to my patrons and my channel members. You guys go above and beyond, and it means the world to me. It really, really does. It's really cool, and I really appreciate it. So thank you all for being here. I hope I see you all again soon. Peace out.